You're watching Reality Check in the escalating war between the Aam Aadmi Party versus the BJP after the CBI raids on Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, a new bombshell. Mr. Sisodia, who along with Arvind Kejriwal is in Gujarat today, said that he got a message from the BJP that if he joins the BJP and splits the Aam Aadmi Party, the cases against him will be dropped. Let's listen. मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफ़र है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। You hear the BJP denying those claims. Now it's clear that the raids have triggered a political battle on the ground. Aam Aadmi Party's Big Two went on a whirlwind tour of Gujarat. This is Mr. Kejriwal's 10th visit to the Prime Minister's home turf in 4 months. He claimed that the BJP is losing ground in Gujarat and that's the result, the trigger behind these raids on Manish Sisodia. While in Delhi, the BJP took to the streets outside the Delhi Chief Minister's house protesting against what they call corruption in the Aam Aadmi Party government. At the core of it, of course, is the allegations and counter-allegations between both sides. The CBI's FIR against Manish Sisodia says the liquor lobby was involved in framing the liquor policy of Delhi and that Sisodia's aides diverted kickbacks they got from the liquor lobby to government officials. They claim that liquor firm owners sent cash to an AAP strategist and that the liquor policy was framed without informing Delhi's Lieutenant Governor, who'd written to the Home Ministry saying that the Delhi liquor policy led to a 144 crore rupee loss. The Aam Aadmi Party has of course rebutted these charges. They deny any kickbacks. They say that it was the BJP and centre's quote-unquote attacks on the liquor shops and the liquor policy that led to their U-turn where they scrapped the policy earlier this year. They said that it was the LG's intervention that actually led to the revenue loss and that political vendetta was behind raids on Manish Sisodia. First, let me go one-to-one with Sanjay Singh, a senior leader of the Aam Aadmi Party, Rajya Sabha MP. Thank you so much, Sanjay ji, for joining us. Sanjay ji, ये बताइए कि आज ये जो धमाका मनीष सिसोदिया ने एक तरह से किया है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी से ऑफर आया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ देते हैं तो ये सारी रेड्स खत्म हो जाएंगी। बीजेपी कह रही है कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें इसका कोई मतलब वो नहीं है, बेसिस नहीं है, ये बिना प्रूफ के कहा जा रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ आपको लगता है कि ये कोई बेसिस नहीं है? जिस पार्टी ने गोवा के अंदर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, जिस पार्टी ने उत्तरांचल में, अरुणाचल में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, जिस पार्टी ने कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र की पूरी सरकार गिरा दी, लालू यादव की पार्टी के साथ ऐसा ही खेल ये पहले कर चुके हैं। आपको लगता है कि उस पार्टी के इस बयान पर कोई यकीन करेगा कि इस आरोप का कोई बुनियाद नहीं है? यही करते हैं ये। नहीं, बट संजय जी, नहीं संजय जी, मैं ये कह रहा हूं इसका कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ऐसा ऑफर दिया गया? अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या प्रूफ है कि मुकुल राय, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खुद भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है और उनको अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है, क्या मुकुल राय ने बताया था? सुन तो लीजिए, क्या मुकुल राय ने इस चीज को सार्वजनिक किया था? नहीं, तो मुकुल राय ने नहीं बताया तो हमारे तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मनीष सिसोदिया बता रहे हैं ना, मैं कहता रहा हूं आपसे जी। एकनाथ शिंदे शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं। मुकुल राय शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं। हेमंत विश्व शर्मा शामिल हो जाते हैं, बताया नहीं।
अजीत पवार जाके शपथ लेते हैं, बताया नहीं। मनीष सिसोदिया वो पहले शख्स है जो पर्दाफाश करते हैं इनके नहीं, इस बट कुकृत्य जैसे कि का। आप नहीं, बट जैसे आप जानते हैं संजय सिंह जी की राजनीति में, पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी के लिए कोई भी आरोप जो लगाया जाता है उसका कुछ तो सबूत दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ये बता सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से किसने कांटेक्ट किया उनको? हु कांटेक्टेड हिम? तो आप ये कहना चाहते हैं कि सोर्सेस के माध्यम से जो सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद, फर्जी, गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको सीबीआई वर्सेस नहीं, मैं इसको सीबीआई वर्सेस वो नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कोई आरोप कोई लगाती है बीजेपी या कोई और पार्टी, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि भैया सबूत दीजिए हमें। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इतना बड़ा जो आरोप लगाया है मनीष जी ने, क्या वो इतना कुछ शेयर कर सकते हैं कि भाई किसने बीजेपी की तरफ से ऑफर किया है? कोई कॉल, फोन रिकॉर्ड, मतलब कुछ डिटेल बताएंगे, समय आने पे सब बताएंगे। जो प्रयास इन्होंने महाराष्ट्र में किया वो दिल्ली में सफल नहीं होने दिया मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और मैं कहीं टूटने और बिकने वाला नहीं हूं, मैं आपसे लड़ूंगा और आपकी बातों का जवाब दूंगा। बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे समय आने पे। लेकिन ये ऐसा प्रयोग एक राज्य में किए हो तो आप इनकी, तब मनीष सिसोदिया के आरोप पर आप सवाल उठा सकते हैं क्या हाँ भाई एक कैसी बात कह रहे हैं। अरे भाई यही काम करते हैं ये, विधायकों को खरीदना, तोड़ना, मंत्री पद का लालच देना, सरकारों को गिराना। आप बताइए, जिस अजीत पवार के लिए ये लोग पूरे चुनाव में कहते थे पवार साहब चक्की पिसिंग 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 जेल में जाएंगे, सुबह 6:30 बजे उनके साथ शपथ ले लेते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की बुकलेट निकाली, बट संजय जी वाटर घोटाले की, नहीं बड़े संजय जी, घोटाले की बुकलेट बीजेपी ने निकाली थी, उनको शामिल कर लिया। नारद स्कैम, शारदा स्कैम में ओके, बट संजय जी एक सेकंड, खिलाफ बीजेपी निकल के आई। ओके, बट संजय जी जहां तक, नहीं एक सेकंड संजय जी, मेरा ये कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चार्जेस लगाए हैं कि लिकर लॉबी ही पॉलिसी फ्रेम करने में इन्वॉल्व थी, सिसोदिया जी के कोई साथी थे। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए, एक सेकंड मुझे भी थोड़ा सा, लेट मी आल्सो स्पीक। उन्होंने कहा है कि सिसोदिया जी के जो साथी हैं उन्होंने किकबैक्स लिए भी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लिए भी हैं और आगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी दिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन चीजों को आप भी वेलकम करते हैं कि भाई अगर ऐसे करप्शन के एलिगेशन है आप उसको बिल्कुल ही आउटराइट डिसमिस करने के जगह आप नहीं चाहते कि इसकी कोई वो हो, मतलब आप तो एंटी करप्शन है, आप एक वो लेबल लेते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल दैट दीज चार्जेस शुड बी प्रोब्ड। 1 मिनट का समय देंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इन्होंने 7 साल पहले जब केजरीवाल जी के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था तो क्या बोला था? इसी तरह याद कीजिए, चिल्ला रहे थे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, कोई बचेगा नहीं, सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या निकला 7 साल में? कुछ नहीं निकला। सीबीआई का इसी तरीके का छापा मनीष सिसोदिया के घर पे पहले मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया, क्या निकला? कुछ नहीं। सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई सत्येंद्र जैन पे, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोर्ट से बरी हुए वो लोग, और कई मामलों में दिल्ली पुलिस को फटकार लगी। और तो और छोड़िए, आप याद कीजिए कि किस तरीके से 3 दिन तक लगातार कैलाश गहलोत के घर पे छापेमारी चली। 31 जगहों पे आपने छापे मार लिए। 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पे आपने सीबीआई के छापे मरवाए, एक भी रुपया निकला? कोई संजय सिंह जी, कोई नहीं, बट ये बताइए, कुछ बताया अपने देश को? बट पॉलिटिक्स में आप कह रहे जांचें करते रहेंगे, करते रहिए। एक शिक्षा मंत्री जो स्वास्थ्य पे, बिजली पे, एक सरकार केजरीवाल का जो मॉडल काम कर रहे हैं, हम दिन रात सब कुछ छोड़ के, बट कहीं ना कहीं, नहीं एक सेकंड, कहीं ना कहीं फाइलों की सुगलू कमेटी ने, ओके, बट कहीं ना कहीं आप मानते हैं संजय सिंह जी, क्या निकला आप बताइए? अच्छा ये बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं, क्योंकि इस वक्त आप गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कूद चुकी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इन एलिगेशंस को डिनाई करते रहें, लेकिन पब्लिक के माइंड में कहीं ना कहीं आशंका बनती है कि क्या वाकई इसमें कोई, इज देयर एनी, इसमें कुछ बेसिस हो? कोई आशंका नहीं बनती। यही पब्लिक है जो देख चुकी है कि इतने सारे मामलों में चिल्ला चिल्ला के भाजपा के लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं निकला।
पब्लिक इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता इनके लिए प्रॉब्लम है, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल इनके लिए प्रॉब्लम है, अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य का मॉडल इनके लिए प्रॉब्लम है, दिल्ली और पंजाब जीतना इनके लिए प्रॉब्लम है, गुजरात में पहुंचकर जनता के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान करना इनके लिए प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल को रोकना इनका मकसद है। पर आप सोच पब्लिक आप, देख रही है, समझ रही है। और आप अरविंद के तो आखिरी सवाल आपसे, हमारे खिलाफ बहुत कराते रहे ये। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अरविंद केजरीवाल आज इंडिकेट कर रहे थे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में। ये तो बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं, अरेस्ट कर ले, सबको अरेस्ट करके जेल में डालें। तो क्या इससे लड़ाई रुक जाएगी? क्या इससे शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्रांति हमारी जो है वो रुक जाएगी? नहीं रुकने वाली है। मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए, ना उनसे केजरीवाल रुकेंगे, ना उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकेगा, और ना मनीष सिसोदिया उनके आगे झुकने वाले हैं। Okay, Sanjay Singh ji, let us see how it plays out. And to take on Sanjay Singh, we have with us Ramesh Biduri. He's the Lok Sabha BJP MP from South Delhi. Biduri ji, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया। ये जो मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको ऑफर किया कि अगर वो आम आदमी पार्टी तोड़ के बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। देखो, इनका नेचर है, ये विषय से चीज को भटकाना चाहते हैं, सब्जेक्ट से, विषय से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इनके नेचर में है ये। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का किसी का मैसेज आया है तो वो तो सीबीआई की जांच में और भी काम करेगा, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने फोन किया है तो ऐसे व्यक्ति का मैसेज दिखा दो, टेलीफोन दिखा दो। किसको? देखो, छूना भाग जाना, किसी के ऊपर थूकना भाग जाना, ये इनकी प्रवृत्ति है। केजरीवाल पहले पूरे हिंदुस्तान को बेईमान बताया था, सबसे एक एक करके नाक रगड़ के माफी मांगी थी, आपको ध्यान होगा। आप कह रहे हैं कि ऐसा बीजेपी से कोई ऑफर नहीं आया है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले रहते हैं। इनको कौन नहीं जानता कि सीए के विरोध में जब जो लोग बैठे हुए थे उनको ऊर्जा देने का काम इसी सिसोदिया ने कहा था। उसी सीए से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई कि तुमसे, तुम्हारे गरीब लोगों को भड़काया गया कि तुमसे तुम्हारे सबूत मांगे जाएंगे। बिदुरी जी, उनका कहना है कि सबूत ये है कि जिस तरह से सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बहुत सारे लोग इसी तरह से भाजपा में लाए गए, उनको डराया धमकाया गया, उनके अगेंस्ट केसेस डालने की बात की गई, फिर वो भाजपा में आ गए। नहीं, देखो, उनके कहने से वो कुछ भी कह, अपनी जान बचाने के लिए आदमी जब नहर के अंदर, तालाब के अंदर डूबता है ना, तो वो तिनके का सहारा ढूंढता है। तो वो तिनका ढूंढते फिर रहे हैं कि किस सहारे से हम लोगों का माइंड इस एक्साइज पॉलिसी में करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है इससे डाइवर्ट कर दें। वो आए ना, वो एक्साइज पॉलिसी पे मनीष सिसोदिया ने आज तक आपके चैनल पे आके कह दे कि मैं कभी ओबराय होटल गया नहीं, मैं शराब व्यापारियों से, कारोबारियों से, माफियाओं से कभी मिला नहीं, मेरी कभी मीटिंग नहीं हुई। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी के खिलाफ, जो ब्लैक लिस्टेड को टेंडर नहीं देंगे दिया, कार्टेल को नहीं देंगे दिया, 144 करोड़ रुपया क्यों छोड़े, ये आपके मना कर दें। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो भाजपा कह रही है वो एक तरह से सीबीआई की जो एफआईआर है, जो चार्जेस है, उससे भी आगे जाके बहुत सारे आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि इस बात से साफ हो जाता है कि भाजपा और सीबीआई में पूरी तरह से तालमेल है। ये रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर सबको चोर बताएंगे, सबको चोर बताएंगे। तब ये कहते सीबीआई से जाकर सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे, तब तो कांग्रेस की सरकार होती थी। तो इसीलिए ये खुद पे किसी पे आरोप लगाएंगे, और हमारे पास तो साक्ष्य हैं। इन्होंने तो बगैर साक्ष्य के आरोप लगाए थे, अपनी गिरबान में झांके। ये इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने बगैर सबूतों के जेटली साहब पे आरोप लगाए, माफी मांगी, गडकरी साहब पे लगाए, माफी मांगी, कांग्रेस के इंदिरा कपिल सिब्बल पे लगाए, माफी मांगी, इन लोगों ने मजीठिया अकाली नेता उस पे लगाए, माफी मांगी। अब ये हम तो सबूत दे रहे हैं इनको, इनकी पॉलिसी, इनकी कमेटी की सिफारिशें, इन्होंने कहा पब्लिक रेफरेंडम के अनुसार काम करेंगे। लेकिन बिदुरी जी, अगर रेड्स का टाइमिंग देखा जाए कि इसी वक्त आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी तरह से कैंपेन कर रही है, एक तरह से कहा जा रहा है कि आपको वहां टक्कर मिल रहा है, सिसोदिया जी फ्रंट पेज में आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड्स हैं। अभी तक जितने भी चुनाव हुए, किसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा को कभी नहीं हराया। दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, उनको हराया है। पंजाब में अकाली कांग्रेस से हम थे नहीं, उनको हराया है।
उत्तर प्रदेश में 5 साल से हमारी सरकार चल रही थी, इनकी 380 सीटों पर जमानत जब्त हुई 400 में से। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, 68 सीटों पर आउट ऑफ 70 इनकी जमानत जब्त हुई। दिल्ली के अंदर हम सरकार में नहीं थे, शीला को हराकर ये आए हैं। दिल्ली में कॉर्पोरेशन में 2 चुनाव हुए, जब इनका उदय हो रहा था 12 में, 13 में बने, हम कॉर्पोरेशन जीते, इन्होंने लड़ा था। 2017 में हम कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे, ये लड़े, इनको इनकी हैसियत पता लगी। तो आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल पॉलिटिकल थ्रेट नहीं मानते? आप कभी भी पॉलिटिकल थ्रेट आप पॉलिटिकल थ्रेट है कम्युनिस्टों के लिए, आप पॉलिटिकल थ्रेट है कांग्रेसियों के लिए, जो एंटी नेशन में हमेशा पार्टिसिपेशन देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, देश जानता है। इसीलिए अब दिल्ली में 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 7 सीटों पर 5-5 लाख की वोटों से भाजपा को मोदी जी के नेतृत्व में सांसदों को जिताया है। तो इसीलिए 2 चुनाव तो दिल्ली, इनको आम आदमी पार्टी से कभी भी कोई भाजपा को थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि देश जानता है एक तरफ एंटी नेशनलिस्ट को चुनना है, एक तरफ नेशनलिस्ट लोगों को चुनना है, एक तरफ गरीबों के हितैषी को चुनना है, एक तरफ इन चोरों को चुनना है जो कहते थे और करते क्या है। विदुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I've got a panel with me. We've got Priyanka Kakkar from Aam Aadmi Party, Ashutosh, senior journalist and analyst, Naresh Goyal, President, Delhi Liquor Traders Association. So let's just go across to Ashutosh. Ashutosh, of course, politics, people make allegations all the time. But when you heard Manish Sisodia, and of course, as we heard Sanjay Singh saying, there's a pattern of this happening, that, you know, senior opposition leaders are threatened with this ED, spectre and then made to cross over. You think there's any basis to it, or is it just, politicking? See, Srinivasan, how do I know? Somebody has given him an offer and somebody has revealed it. So obviously I have no source and I have no investigating agency to tell me that exactly. Of course. No, what I meant is, what did you make of it? Did you think that there was could there be some credibility to it, or does it sound unrealistic? No. See, unless I have facts, I can't answer the questions. So it's very simple. See, but one thing I would like to say, that I think the BJP has, in a way, has done something which they will regret later. Why I'm saying so? For the simple reason, because this whole issue was about the liquor policy, and the Aam Aadmi Party, led by Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, has brilliantly turned the table on the BJP. Now the whole debate is on the education policy. Whole debate is on other thing other than the liquor policy. Today he is calling about Maharana Pratap. BJP is saying about Aurangzeb. Now anybody who knows little bit of political propaganda understand that if the Aam Aadmi Party is pinned on the liquor policy consistently and persistently, then probably they will achieve their targets. But if Aam Aadmi Party is shifting the focus from the liquor policy to the New York Times article, to the Maharana Pratap, to that Manish Sisodia should get the Bharat Ratna and all that, that showed that they had succeeded up to a certain extent. Okay. The attack which was on the Aam Aadmi Party on the issue of liquor policy, now the debate is on the education policy. That's where their success lies. I do not know whether it has been offered or not offered. That's not sure. Of course, that's something which, But so sorry. Let's come back to you, PKD. I think we've got you back on. Is this, as Ashutosh is saying, has the BJP scored a bit of a self goal here? I would say that Aam Aadmi Party, and especially the Kejriwal and his team, is always considered to be changing the narrative very often. I mean, like, you can say that they change their color 10 times in a day. So when you talk about a liquor policy, Ashutosh said is very right. They will talk about the education. Whenever you talk about the but that's fine. But has the BJP scored a self goal as a result? No, I don't think so. It is the first time. It's in the first time in the last 10 years, Arvind Kejriwal and his government has completely been exposed amongst the people. Today there is a consistent message, and we are today talking about an anti-corruption movement today connected to a corruption charges. So there is a huge change. Of course, they will be trying their level best to change the narrative from, as Ashutosh said, from to taking to Maharana Pratap, maybe to wherever it may be. But the topic today is the discussion. There has been a corruption which has been taken place in the case of liquor policy. That is the reason in any debate you will never be able to find Aam Aadmi Party spokespeople people are able to
clearly come out clean Okay. with their comments on Priyanka liquor policy. Kakkar- Even today, you will not expect that. They will talk about anything else other than the liquor policy. Okay, but Priyanka Kakkar, the fact is that, while AAP may want to make this about a wider fight against corruption and against victimization, the fact is that this policy was scrapped. There were many questions raised about it, including some of the vendors themselves said that there was cartelization, there was unfair business practices. So somewhere along the line, was there a sense that there were problems with this policy, which may not just be, flawed policy design, but perhaps also some kind of financial malfeasance, corruption? Anybody who's currently saying if there is any weightage at all in the allegations leveled by the BJP, mind you, I say BJP and not the CBI, because the CBI has filed a FIR filed through some sources, which seems to be the trend of the day. Some sources have made certain allegations, and yet the FIR is completely silent on any allegation on Manish Ji. So all of these figures that they mention, be it 144 crore, be it 30 crore, all Sure. of those figures are a figment of their imagination. Nothing, the FIR says nothing of the sort. And I'll be answerable. No, but the fact is, but it does say that the liquor lobby was involved in drafting the policy. It names certain AAP strategists who said received cash from members of the liquor lobby, and so on and so forth. No. I disagree, Srinivasan ji. I have gone through the FIR too. Nowhere does it mention cash. It mentions a amount of 1 crore into a bank account. That's what it says at one point, which bank account does not belong to Manish Ji. Be that as it may, I would still answer all their fictitious claims. But I am not very clear about what kind of scam are they alleging. And it transpires today, it appears that, it is the same modus operandi Vasu, can that I they ask use one or two in all questions states, through you? to topple the government. Okay. This is what they do. I just want to ask Naresh Goyal, President, Delhi Liquor Traders Association, that Naresh ji, this whole policy, bringing it, reversing it, was this just bad policy design, or did you also feel that there was some scam behind it? धन्यवाद श्रीवासन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो है 632 दुकानें, 632 शॉप्स थी, जिसके अंदर की 372 शॉप्स गवर्नमेंट शॉप्स थी और बाकी प्राइवेट शॉप्स थी, जो कि शॉपिंग मॉल्स में हाई स्ट्रीट्स में थी। और ये 6400 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, जो कि ओल्ड पॉलिसी के अंदर चलती थी। और 18 साल से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था। दिल्ली का जो मॉडल चल रहा था वो इंडिया में एक बेस्ट मॉडल के तौर पे जाना जाता था। यहाँ पे कभी फिक्स प्राइस और गवर्नमेंट और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ना सर्विसेज में दिक्कत थी और ना किसी चीज और में दिक्कत थी। ड्राई डेज, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे, 21 ड्राई डेज होते थे। नेबरिंग स्टेट के अंदर ड्राई डे कम होते थे। एज भी 25 इयर्स की दिल्ली में थी, जबकि नेबरिंग स्टेट्स में कम थी। टाइमिंग भी दिल्ली में कम। कि कोई स्कैम था कि नहीं इसमें? सर, मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जब प्राइवेट में जब किया गया, 6400 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू आ रहा था, 10% इंक्रीज के साथ आ रहा था। एक रिफॉर्म लेके आए आम आदमी पार्टी, उसके अंदर इन्होंने जो इसको नई पॉलिसी लेके आए, उसके अंदर इन्होंने सब कुछ चेंज किया। ड्राई डे भी घटा दिए, टाइमिंग भी बढ़ा दी, एज भी घटा दी। उसके बावजूद इनका रेवेन्यू गिर गया और लिकर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। नहीं, अगेन क्योंकि मेरे पास वक्त कम है नरेश जी, मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, वो पूरी पॉलिसी की हिस्ट्री, कब लाए कब गए, वो सब हमने कई बार कह चुके हैं। पॉलिसियां आप तो जानते हैं, सरकार आती हैं बदलती हैं, वो एक अलग चीज है। क्या इसमें आपको कोई घोटाला या इस किस्म के जो आरोप लगाए हैं उसके कुछ आसार दिखे? जो चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस किए हैं नई पॉलिसी लाने के लिए, वो संदेहों के घेरे में रहे हैं, शुरू से रहे हैं, और हमने उसके ऊपर लगातार सवाल उठाए। बड़े बड़े जोन बनाना, आम आदमी को इससे बाहर कर देना। Okay, Priyanka Kakkar, you want to respond to that he's saying, and I, with the assumption that this is a non-political sort of take on this, that there were questions about these multiple changes and about what appeared to be favoring certain players.
It is absolutely incorrect, Srinivasan ji. This will require a longer debate. I've gone through both the policies, and I can assure you that the current one in its form was actually one of the best policies that we see. It was minimum government intervention. Why It did you was scrap them? the- Why did you let me scrap speak. it? Let me Why speak. have you gone back? Let me speak. Okay, why okay. Have, Why have you gone why back? have you not worked If on it is the महंगाई? world's best 25,000 policy, रुपया why कमाने take पे it back? टॉप 10% में आते हैं आज आप देश में 25,000 World रुपया अगर का कमाएंगे तो बेस्ट Let me पॉलिसी speak. को आपने एक दिन में Let क्यों me हटा दिया speak. गया? Okay, okay. Why ऐसे did you लोगों cut, को why did you take? Okay, one at a time, one at a time. We're very short on time. मुझे बताने दीजिए आप सीबीआई ज्वाइन कर No, लीजिए आपका क्योंकि policy सीबीआई ने के- भी एलिगेशन नहीं from लगाया your है। policy, have आप you मुझे earned more बात or have करने you learned दीजिए। less? आप this is Only the problem. question, They have don't you let them forget speak. about the They CBI. don't The want an question is, answer. Okay, have okay, you okay. We earned can't. more? No one can Have hear you earned anything. less? No one Have can you hear earned anything. more or have you earned less? That's all the question. You Okay, don't okay, want all right, an okay. answer. We You cannot, don't if you let get anyone into talk. Congress, Have you BJP, earned nobody less? can speak. I don't want to lower mics. This is what they do. They Okay, don't all let right. anyone Let's get. respond. Okay, fine. Your Ashutosh, last word from you. We're completely out of time. Yes, Ashutosh. Vasu, there are two things which raises a serious question about this. The first of all, why the Manish Sisodia held a press conference and he accused ex-LG Anil Bajal that last minute changes which he made was the reason for the loss of revenue. So the Okay. issue is on 17th November this policy was to be executed. On 15th November LG sends back file and says Right. in unauthorized colonies you have to go to the LD, take the permission Right, of LDA right, and MC. right. Now the issue is, after getting the file, why Aam Aadmi Party did not raise a question that questioned this? Okay. If they had questioned, then probably today they wouldn't have been in trouble. All right. Well, let's see how it plays itself out. But thank you so much for joining us. We will, of course, continue to focus on this big story. Thanks very much.